Hello students, so today we are going to find out angular momentum and we are going to do this question, okay, for these two cases, okay. So let me just read the question. There is no a lot of questions. So let's say calculate the angular momentum about point O, okay. In both cases there is some point O on the axis of rotation and in the following cases. So I am going to consider two cases, one where there is a particle having rotational motion and in other there is this rod of mass m and length l, okay. Let's consider both the cases one by one. So I am going to erase this and full question you can find it in the description. Actually in this case you might not find a lot, so you just make a note of the question and yeah. So let's just do first case. Tell me one thing. So in first case there is a particle, right? So particle ka center of mass is going to be at the same place. So for this particle there is no angular momentum about its center of mass, right? So whatever angular momentum is you are going to get is about this point O and about this rotation axis. Now, so this rotation is taking place in z plane. So xy plane is this plane of the board, ठीक है. xy plane of the board है और जो rotation हो रहा है it is like this. So if we'll consider this xy plane, this is y axis, this is x axis, alright. Now your rotation is taking place like this. So this is particle moving around like this. So I can draw half of it, right? So out of this plane, so something like this. So this is the line L और स्ट्रिंग से ये पार्टिकल बंधा है यहाँ पे इसके कैप के पास और इट इज हैविंग दिस rotational motion about this point O, ठीक है. Now angular momentum, what is it? So in first case, case 1, angular momentum L we are going to do in terms of vector. Always follow the vector thing, okay, vector procedure, not just formula that you have marked up, ठीक है. तो R cross M into V, right? V is for the velocity of the particle. Now R vector, what is this R vector? Tell me. This is the R vector. If you find the R vector, what you can do is you can find its location. So x axis पे इसका लोकेशन कैसे क्या है बताओ. L का कंपोनेंट लो, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ का L sin थीटा, y axis पे इसका कंपोनेंट क्या होगा L cos थीटा, ठीक है. अब देखो x axis पे इट इज इन नेगेटिव x डायरेक्शन. सो r कैप क्या हो जाएगा माइनस L sin थीटा I कैप प्लस y axis में it is also negative. So let me put minus sign. Minus L cos theta j cap. You take cross product of this with mass of the particle is constant, so I am going to write it here, okay. And v vector, what is v vector? This is important. V is usually what? R omega, right? But what is the direction of that velocity? Velocity that v equal to R omega is in this direction. So if you take a tangent at this point, you can see that this velocity is going to come out of the board. And if xy plane is the plane of board, so R omega, direction of R omega is going to be in z cap direction, right? That means k cap. Now you can find out in another way. So v is equal to omega cross r, okay. So direction of omega cross r you can find out, okay. So here it is pretty intuitive, आप ऐसे पता कर सकते हो. So this xy plane is this plane of board and this circle, the particle is having rotation away from, not in that plane, in z cap direction, sorry, in k cap direction. So it is going to be how much? Okay, what is going to be r by the way? This length. R of what? R of this horizontal circle.
that is going to be L sin theta into omega, and what is the direction? Like I said, k cap, so it is coming out of the plane, so that would be k cap. ओके बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, राइट? इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है? ये हो जाएगा, करो इसे, m I क्रॉस k, k क्रॉस I is j, but I cross k would be minus times, so minus and minus would be plus L square sin square theta into omega j cap minus j cross k is I, so minus is already there, it would be L square sin theta cos theta I cap. Okay, so this is your angular momentum. So application of this method can be found in some big question, जिसमें finding angular momentum would be the secondary thing. Angular momentum ठीक है, find करो, but उसके अलावा there would be other details, for example moment of inertia, angular acceleration, right? All those things उसको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है? For example, in one of the advanced question, there could be combination of this problem as well as some other parameters that you need to find out, ठीक है? Okay. So ये हो जाएगा ml square, इसको सही से लिख दो, sin square theta and ml square omega. Okay, there is omega also here. Okay, ml square omega common ले लो, sin square theta j cap plus ये हो जाएगा sin theta cos theta या minus I cap लिख दो, or you could have put minus sign there. Okay, चलो next second case करते हैं. Okay, so this is the case for this thing. Okay, second case is more interesting. ठीक है, फर्स्ट वाला तो ठीक है, पार्टिकल का था, सीधा सीधा आप डायरेक्शन निकाले. बाय द वे यहाँ पे v की डायरेक्शन v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r निकाल के सोचना and find out whether this comes in k direction. If not, write in the comment section. ठीक है, if you are not able to understand that direction, let me know. I'll explain it in one of other videos. Okay, किसी वीडियो में मैं उसको बता दूंगा. Okay, केस 2. केस 2 में क्या है, देखो इस रॉड का ओके रोटेशन एक्सिस इज दिस y एक्सिस, राइट? y एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है एंड यू हैव टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम, sorry not angular momentum, yeah angular momentum about point O, right? Tell me one thing, if this rod was being rotated about its center of mass, एक रॉड ले लो, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसे रोटेट करते हैं, तब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता? L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता, और इसका I अबाउट द सेंटर, किसी रॉड का जिसका मास m और लेंथ L है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अबाउट द सेंटर, ठीक है, ml स्क्वायर बाई 12 इनटू ओमेगा, राइट? और अबाउट द एज अगर यहां से भी होता तो क्या होता, बताओ? I यहां का लेते थे, पैरेलल एक्सिस, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m, ये कितना हाफ है, l बाई 2 m l बाई 2 होल स्क्वायर, ये आपका I आ जाएगा, और ये I कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है? तो I इंटू ओमेगा, तब क्या हो जाता? ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ठीक है? बट ये दोनों केस, दिस केस इज डिफरेंट देन दीज टू केसेस, इन दोनों से अलग है. यहाँ पे ना एंड के अबाउट निकाला जा रहा है, ना ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला जा रहा है. आपको निकालना कहाँ से? एक डिफरेंट पॉइंट O से, ठीक है? तो what would be the angular momentum? It's pretty curious case, right? So I'm going to erase this part, ठीक है?
देयर कुड बी टू मेथड्स, मैं एक पहले मेथड से बताता हूँ, फिर दूसरा मैं हिंट दे दूंगा, आप ट्राई करना, ठीक है। पहले बहुत कॉमन मेथड से निकालते हैं। एल फाइनल हो जाएगा LCM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम होगा प्लस m r क्रॉस VCM, ठीक है। पार्टिकल के केस में ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज पार्टिकल हैज इनसिग्निफिकेंट साइज, ठीक है, देयर वाज नो साइज, साइज वाजंट कंसीडर्ड फॉर द पार्टिकल, अदरवाइज उस पार्टिकल का भी एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंटम एंगुलर मोमेंट आ जाता, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा ये करेंगे। सेम LCM हमने अभी अभी निकाला है, LCM क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा इसके सारे पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, राइट, ठीक है। तो LCM क्या होगा, I ओमेगा, I सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या था, ml²/12 इंटू ओमेगा, ठीक है। R वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। R वेक्टर किस चीज का बताओ, इस पॉइंट का, सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। यहां से कितनी डिस्टेंस पे है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा I डायरेक्शन में कितना आपको चलना पड़ेगा, यहाँ पे L/2, राइट, तो ये हो जाएगा L/2 I कैप प्लस x डायरेक्शन में, और y में माइनस में जा रहे हो आप, -a j कैप, ऑलराइट। एक्चुअली नो 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 नो, राइट, ओके फाइन। सो नहीं, ओ के रिस्पेक्ट में लेंगे ना, ये प्लस a j कैप होगा, ठीक है, राइट, और माइनस, ओके, लेट्स सी। हाँ राइट, सही तो है, ठीक है। तो L/2 I कैप प्लस a j कैप, ठीक है। फाइन, हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल रहे हैं O को ओरिजिन मान के, ठीक है। तो AB प्लस डायरेक्शन में होगा। VCM क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, R ओमेगा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू R ओमेगा, राइट, ओमेगा क्रॉस R। अगेन वही केस है, ठीक है। अगर आप रॉड को ऐसे रोटेट करा रहे हो, दिस इज द y एक्सिस और ऐसे, ठीक है, दिस इज रोटेटिंग, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन तो ये होगा ना, बट इसका जो वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट टू इक्वल टू आर ओमेगा ऐसे टेंजेंट होगा, राइट, इस सर्कल के, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स वाई प्लेन ऐसे हुआ, और ये कौन सा प्लेन, कौन सी डायरेक्शन हुआ, के कैप, ठीक है। एंड अगर ये इधर होता, ठीक है, ओमेगा अगर ऐसे दूसरी डायरेक्शन में होता, इसका जस्ट अपोजिट, तो ये ऐसे जा रहा होता और टेंजेंट इधर आता, तो हम इसको, ये होगा प्लस के कैप, लेकिन ये इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड जा रहा है, ठीक है, इधर ऐसे, राइट, आई होप यू कैन सी इट, तो माइनस के कैप डायरेक्शन में होगा, ऑलराइट। तो VCM क्या आ जाएगा, VCM सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के लिए रेडियस तो ये होगा ना, L/2 के रेडियस पे हो जाएगा, राइट, सेंटर ऑफ मास, तो ML नॉट V, L/2 इंटू ओमेगा किस डायरेक्शन में, माइनस के कैप, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक्चुअली नहीं करना चाहिए था, आई वांटेड टू टेल यू अबाउट अदर मेथड, ओके। L नॉट, ये L क्या हो जाएगा, LCM तो पता है, ml² ओमेगा/12, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अगर ml²/12 ये I ओमेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
इट वुड बी, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ओमेगा और ये, ठीक है, सॉरी ये सेंटर ऑफ मास, ये O, दिस इज R, दिस इज A, दिस इज L/2, ठीक है। ml²/12 इंटू ओमेगा, इसकी डायरेक्शन होगी j कैप, ठीक है। तो j कैप क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, y, ऐसे करो, you know right hand thumb rule, when you curl the y axis in y direction, so this was x axis, right, and this is y. When you curl y axis in your palm, what you will get, thumb will give you the direction of omega. I is the scalar quantity, right, here ml²/12 omega j, ठीक है। actually tensor है, but you don't have to understand tensor, you don't have to take that direction here, right। तो करो यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, ml²/12 ओमेगा j कैप प्लस m इंटू r वेक्टर क्या है, L/2 I कैप प्लस a j कैप क्रॉस L/2 ओमेगा माइनस k कैप, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो L क्या आ गया, ml²/12 ओमेगा j कैप प्लस, यहाँ से लिखते हैं I क्रॉस k हो जाएगा माइनस j कैप, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा L²/4 ओमेगा j कैप, और वहाँ j क्रॉस k क्या आ जाएगा, I कैप, राइट, और ये माइनस ऑलरेडी है, प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस a L/2 ओमेगा j क्रॉस के I कैप, माइनस का, क्यों माइनस, माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। O को ओरिजिन माने हैं हम लोग, यहाँ पे तभी R वेक्टर तुम्हारा आया था, प्लस सॉरी L/2 I कैप प्लस a j कैप आ गया, ये वाला, ठीक है। नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट और j कैप वाले j कैप को एक साथ कर लो आप, ठीक है। ठीक है, कहाँ लिखें, ये यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस करंट्स, राइट। सो L इज इक्वल टू ml²/12 ओमेगा, ml²/12 हो गया ml²/4 ओमेगा, तो ये हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा, ये j कैप में आ गया, और यहाँ पे प्लस का m a L/2 ओमेगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में, माइनस I कैप, ठीक है। यहाँ पे एक और मेथड देखते हैं, यही है ना MAL/2 ओमेगा। अदर मेथड कैन बी, अभी आप सेंटर ऑफ मास की हेल्प से निकाल रहे हो ना, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने बताया था ना, एंड के अबाउट I की वैल्यू क्या होती है, ml²/3, राइट। तो मेथड 2 में आप ऐसे कर सकते हो, इसके अबाउट, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, यही ml²/3 ओमेगा, किस डायरेक्शन में, j डायरेक्शन में, राइट, प्लस इसकी लोकेशन O के रिस्पेक्ट में R वेक्टर क्या हो जाएगा, बताओ, R वेक्टर हो जाएगा a j कैप क्रॉस m रहेगा यहाँ पे, क्रॉस v कितना आएगा, वही BCM L/2 इंटू ओमेगा, L/2 इंटू ओमेगा किस डायरेक्शन में, माइनस k कैप, कितना आया, j क्रॉस k क्या होगा, I कैप, राइट,
यहाँ पे L लिख लो। अरे यार यहाँ पे मैंने L, दोनों L को सेम रखा है, प्लीज आई एम सो सॉरी। L इज द वेक्टर और वहाँ पे स्केलर है, ठीक है फाइन। L वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा j कैप, और यहाँ j क्रॉस के i कैप, तो वही हो जाएगा m a l बाई 2 ओमेगा माइनस i कैप, ठीक है। तो दोनों मेथड से यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू, राइट, एम ए एल बाई 2 ओमेगा। तो मैंने इन फर्स्ट केस आई कैलकुलेटेड द मोमेंटम, सॉरी LCM प्लस m r वेक्टर क्रॉस VCM, एंड सिमिलरली इन द सेकंड मेथड वी नो द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। तो नेक्स्ट केस में r की जगह पे इसकी लोकेशन रखेंगे, ना कि सेंटर ऑफ मास की, बट VCM इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। हम वी आर गोइंग टू कंसीडर द वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ mass only, okay. So thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel and clear your doubt, keep asking the question. These all questions are asked by one of the students who are on Telegram, or who can comment on the one of my videos on YouTube, and you can clear your doubt, okay. Thank you so much, bye.